Hit the gas and zoom into the world of Ashwin Singh Takyar, a true embodiment of work hard, play hard. His story started with toy cars in his bedroom to Swifts and i10s given by his family, and now owning the Defender, the Endeavour, and the Drift BMW and the BMW M2, all bought by his own self. From tuning engines in his garage to spinning stories on YouTube, Ashwin lives life in the fast lane. It's not all under the hood though. He's also the brains behind a bustling cafe and a caring Gaushala, driving his passion for cars into community service. Whether he's modifying a rugged 4x4 or drifting through his latest vlog, Ashwin gears up with the same intensity. Join us as we dive into how this motorhead turns every challenge into a checkpoint and every opportunity into an open road. This is the ride of a lifetime, and you're invited. सो दिस वाज बिफोर इंजीनियरिंग. तो उस टाइम पर ये था सब था, मतलब इतनी खराब होती थी वो गाड़ी कि आधा मैं काम करना सीख गया था. मैं ज्यादा रोड, मतलब वो गाड़ी रोड से ज्यादा मैकेनिक के पास ज्यादा रहती थी. मैं साथ ही होता था, पूरे दिन कराते थे. आई वाज इंक्विजिटिव, मैं पूछ रहता था ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये होज क्या है, ये मतलब सारी चीजें उनसे पूछता रहता था. तो वहां से भी थोड़ा बहुत सीखा. वहां से आई थिंक मेरे को समझ आया कि अगर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मतलब मेरा आई थिंक बहुत वो था, मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मेरे को कॉलेज में ये सिखाएंगे कि इंजन्स के वहां पर सिर पे बड़ा फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पता नहीं क्या क्या. तो वो चीज बहुत क्रेजी थी. बट फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे शौक पड़ा, फिर पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करी इसी से रिलेटेड. एंड सो टुडे आई थिंक पता नहीं कितने साल बाद यस, फाइनली मौका मिला है तेरे साथ बैठने का. आई थिंक 10-12 years. Almost 12 or probably even 13 years. I think I have no idea about your life, about how you've evolved as a car enthusiast. And boss, seriously saying from here, I'm telling you right now, forget about the podcast and stuff, but genuinely I can't tell you how happy and I'm proud about Thank you know so much. your evolution as a person, as Thank a businessman, as a car enthusiast, Thank you. everything. Thank you. And God bless you for the kind of followership you have. Thank you. And although I personally feel, अभी we will talk about it in detail आगे जाके, but आगे आप जो followers हैं आपके, I don't know क्या क्या सोचते होंगे, but मुझे मालूम है the kind of hard work you've done, and this is exactly what we are wanting. You've been there with me Yes. through the starting, no? Exactly. You were there with me. Although I mean, we were definitely not in conversation for a very long period of time, but I kind of knew that you are going through phases of your and life. you were there in my life. This sounded really wrong, but as a friend, but he was there in my life when I just started my struggle. So you were there at that time, so you know कि क्या क्या मैंने hard work, but you missed the main part of that struggle. I'm sure. And we will talk about that very briefly today. Sure. So yeah, I mean, the first question, I think a lot of the people viewing this, even your audience, they would want to know a little bit of detail about your passion for cars. Where did it all start for you? कहाँ से आपको लगा कि यार गाड़ियों का शौक है, कुछ करना है, गाड़ियों से रिलेटेड कुछ करना है, और probably I want to own such amazing cars that you have, or you've had also earlier in your life. What's the story behind it? जैसे यार हम सब, दिस इज हाउ गाइज आर, आई गेस. हमें कार्स पसंद होती हैं, वही सब वैसे ही शुरू होती है यार. बचपन में वो टॉय कार्स के साथ ही सबका शुरू होता है. उन्हीं को खोल देना, उन्हीं को मॉडिफाई करना, मोटर्स निकाल देना, एंड मोटर को फिर आई यूज्ड टू हुक अप टू अ बैटरी, एंड फिर किसी कार पे टेप वगैरह से लगा के कुछ भी बना देना. ऐसी चीजों से शुरू हुआ था. एंड मतलब आई गेस आई वाज बोर्न दिस वे. आई वाज रियली क्रेजी फॉर कार्स, फॉर बाइक्स. एंड मतलब आई यूज्ड टू स्लीप इन माय बेड विद माय टॉय कार्स, जितनी भी हम उस टाइम पे अफोर्ड वगैरह कर सकते थे. मतलब माय मॉम डैड यूज्ड टू गेट देम फॉर मी, जितना उनसे होता था. तो दे यूज्ड टू गेट देम फॉर मी, एंड मैं उन्हीं के साथ सोता था. एंड आई यूज्ड टू अलाइन देम पूरी की जितनी भी होती थी. इवेंचुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग, बट जितनी भी होती थी सब मेरे साथ ही मेरे बेड पे ही होती थी. सोता था, सुबह उठता था, उन्हें देखता था, फिर स्कूल जाता था. I think the toys are still growing. Yes, they are. So there's a saying also, no, guys don't grow up, their toys just get more expensive. Toys keep growing. So that's the case. Live example मैं हूँ, I guess उसका. And बस वहीं से शुरुआत हुई यार. And I was lucky to have parents who understood कि भाई ये मतलब ये मोटर स्पोर्ट्स का ही, गाड़ियों का ही है. Okay,
रहेगा ये, एंड दे वर कूल विद इट आई गेस, दे नेवर एवर फोर्स्ड मी। मतलब इवन मैं बताता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग भी इसीलिए करी, आई रियली वांटेड टू वर्क इन द इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यू आर एन इंजीनियर? या आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। यार तो मेरा बचपन का दोस्त है, देखो ये नहीं पता, ये है दोस्त हमारे, देखो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने अच्छा पहले आई वांटेड टू डू ऑटोमोबाइल्स ओनली, बट फिर माय पेरेंट्स सेड कि इफ इट डजंट वर्क आउट देन व्हाट, सो यू शुड डू मैकेनिकल। तो फिर मैंने मैकेनिकल करी, एंड फिर मैंने सोचा था स्पेशलाइजेशन कर लूंगा कभी ऑटोमोबाइल्स में, कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा अलग से कर लूंगा इंजीनियरिंग के बाद। बट फिर लाइफ का अपना वो होता है, अलग अलग रूट्स। अभी जो मेरा जितने भी सारे काम है, इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो आई थिंक दिस इज द केस विद मोस्ट इंजीनियर्स आई गेस, बस मतलब डिग्री के लिए ही सारे कर रहे होते हैं आई गेस। बट यही है, फिर वहां से शुरुआत हुई थी आराध्या, एंड फिर टॉयज इवेंचुअली वही क्रेजीनेस थी भाई, एंड हसल का आई डोंट नो कहाँ से, मतलब इतना मेरे पेरेंट्स से मेरे को मिला है हसल का, वो जो जील होती है ना, जो हार्डवर्क की, मतलब वही मिली है व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड when I first got my car, like first car. Which one was it? The first car? So my first car, अच्छा इसका जो श्रेय जाता है ना, वो मेरे डैड को भी जाता है। My first car was a fully modified Gypsy. It was cut short. Actually, the body was reduced by I guess a foot. I think उसका overhang काट दिया था exactly. तो overhang काट दिया था, and it was painted bright yellow, and it had that Suzuki Samurai grill back in the day. वो वाला, and it had a, I think it was the 1 liter one, 1.1 liter, 1.3, इधर 1 होगा या 1.3 होगा, आई थिंक 1.3 था। एंड वो उन्होंने मेरे को लेके दी, हमने उस टाइम मायापुरी में जीप्स वगैरह तैयार होती थी, तो वहाँ से तैयार करके, मतलब सस्ता जुगाड़ था वो बिल्कुल, बस दिखती बहुत सुंदर थी, तो कट हो रखी थी, येलो पेंटेड थी, इट हैड ऑफ रोड टायर्स, ऑफ रोड अलॉयज, एंड ये सब था। और वो इतनी खराब होती थी, आई थिंक वहीं से मैंने गाड़ियों पे काम करना सीख लिया था। आई थिंक दैट इज वेयर योर मैकेनिकल इंजीनियर केम आउट। एग्जैक्टली दिस वाज बिफोर इंजीनियरिंग, सो दिस वाज बिफोर इंजीनियरिंग। तो उस टाइम पर ये था, सब था, मतलब इतनी खराब होती थी वो गाड़ी कि आधा मैं काम करना सीख गया था। मैं ज्यादा रोड, मतलब वो गाड़ी रोड से ज्यादा मैकेनिक के पास ज्यादा रहती थी। मैं साथ ही होता था, पूरे दिन कराते थे। आई वाज इंक्विजिटिव, मैं पूछ रहता था ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये होज क्या है, ये मतलब सारी चीजें उनसे पूछता रहता था। तो वहां से भी थोड़ा बहुत सीखा, वहां से आई थिंक मेरे को समझ आया कि अगर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मतलब मेरा आई थिंक बहुत वो था, मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मेरे को कॉलेज में ये सिखाएंगे कि इंजन्स के बारे में, वहां पर सिर्फ बड़ा फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पता नहीं क्या क्या। तो वो चीज़ बहुत क्रेजी थी। बट फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे शौक पड़ा, फिर पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करी इसी से रिलेटेड, एंड हियर वी आर आजकल। मतलब बेसिकली कई जो मेरे चैनल पे भी व्यूअर्स हैं, कई बार मेरे से पूछते हैं कि समटाइम्स दे आल्सो फील कि किसी टेक्नीशियन से, किसी सर्विस एडवाइजर से ज्यादा कई बार पता हो जाता है। जब हम कोई गाड़ी की डिलीवरी वगैरह ले रहे होते हैं, तब लोग, जब मैं बताता हूँ उसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में, तो लोगों को लगता है इनको कैसे ज्यादा पता, तो ऐसे ज्यादा पता है। डेफिनेटली वो तो होता है, क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस है, मतलब बेसिकली बुक्स की भी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो ये दोनों चीजें। जिप्सी के ऊपर बहुत काम किया आपने, और आज की डेट में यू आर परसुइंग योर recently developed passion for drifting, so now you're focusing on braking cars also and burning tires. Exactly. So that actually brings me to a very connected question to this कि यार एक तरफ जिप्सी जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, आज की डेट में you've got a fantastic fleet of cars, exotic cars. ये जो transition हुआ, tell us more about this. कहाँ आपने एकदम raw cars से अपनी जर्नी शुरू करी? I remember back then you used to have the Thar CRD also, and now the fleet of cars seems to have shifted completely. Yeah. So what was that or that all about? What fascinated you about? Did it something fascinate about you these cars, or what was it? So actually, देखो, everybody wants to own sports cars and everything, and उस टाइम पे पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, बट उस टाइम पे जो मतलब आई थिंक गाइस को यही चीज पसंद होती है कि जितनी अभी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से हम बेस्ट, मतलब एक हमारे यहाँ पर ऐसा था टोरे वाली गाड़ी वो ले सकते जो बेस्ट, मतलब कम पैसे में सबसे ज्यादा शो ऑफ हो सके कि हाँ भाई ये बढ़िया गाड़ी है इसके पास। तो वहीं से वो पैशन शुरू हुआ, एंड थार वैसे आई, जिप्सी भी वैसे ही, शायद मेरे फादर ने भी ये सोच के ले दी होगी कि भाई अच्छी सब स्विफ्ट उस टाइम पे बहुत चलती थी, सबके पास होती, तो मैं इसको कम पैसे में उससे अलग दिखने वाली गाड़ी ले देता हूँ। तो उनका ये थॉट प्रोसेस रहा हुआ, एंड वो थॉट प्रोसेस मेरे साथ लाइफ लॉन्ग अब स्टक हो चुका है। I don't think, I mean I'll cut you here in the middle, but I don't think
a large chunk of your followers on YouTube and Instagram, I think they've seen the recent Thar of yours, but they have no idea what your first Thar looked like. my Instagram family must be knowing, क्योंकि मैं कई बार हमारी वो जो हम वहाँ गए थे ना पुष्कर, हम महिंद्रा ग्रेट एस्केप पे साथ गए थे दोनों, तो वो वाली पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ. आई थिंक उस टाइम पर आराध्या और मेरी जो दोनों थार थी, वो जो जेन 1 थार हम कह सकते हैं उसको, दे वर द मोस्ट मॉडिफाइड एंड मोस्ट क्रेजी बिल्ड्स उस टाइम पर. एंड वन थिंग ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहूंगा, जो मेरा टायर कैरियर है जो मैंने अपनी इस वाली थार पे, सेकंड जनरेशन थार पे लगाया था, इट वाज इंस्पायर्ड बाय माय ब्रदर. सो आराध्या ने सबसे पहले इंडिया में, लोग उसको, कई लोग बोलते हैं उसको पंजाब वाला स्टाइल है, ये वो कोई किसी का स्टाइल नहीं है, वो इस भाई का स्टाइल है. एक्चुअली आई विल टेल यू, इट वाज नॉट इवन मेरा, सो मेरे से भी पहले, इफ यू कर रखा था किसी ने. मैं बताता हूँ कौन. इफ यू नो चंडीगढ़ या आई थिंक लुधियाना में कुलविन सिंह सीरा, he also had a Thar back then and he was the one who took the design. So he made the first one. हाँ, in India. So yes. guess what, everybody was right, वो पंजाब वाला ही स्टाइल है. So मैंने आराध्या से इंस्पिरेशन ली थी उसकी, एंड मैंने उसको जेन 2 में इम्प्लीमेंट किया. मुझे बहुत क्रेजी लगता था वो. हम ऑफ रोडिंग करने जाते थे, एंड आराध्या और मैं साथ साथ गाड़ियां भगाते हुए जाते थे. ही वॉज द पर्सन हु गॉट मी इनटू ऑफ रोडिंग. इनफैक्ट ही वॉज द पर्सन हु टॉट मी हाउ टू ऑफ रोड डूज एंड डोंट्स. एंड माई फर्स्ट OTR वॉज विद माई ब्रदर, एंड ही वॉज अ वेरी गुड कोच. इसने बिल्कुल एक भाई की तरह मुझे समझाया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बहुत समझाया. हर बार इसने मुझे पुश किया. एंड पुष्कर, वो ग्रेट एस्केप के लिए भी आराध्या ने पुश करा कि यार थार है तो यहाँ ऑफ रोडिंग करता, अब टाइम आ गया कंपीट करने का, लेट्स कंपीट एंड सी कि किसमें कितना दम है. तो हम वो कंपीट करने भी गए थे. ज्यादा ही तारीफ कर रहा है एक्चुअली. द फैक्ट इज कि जब मैं इसको कोच करा था, उड़ते उड़ते गालियां भी आ रही थी कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. No, but he used to push me. I am somebody who loves, his cars. So I can't break them deliberately. So off-roading में क्या होता है कि एक डर होता है नए बंदे को ना, कि यार मैं उसको अपनी पोटेंशियल नहीं पता होता गाड़ी का, तो उसको लगता है मैं फुल थ्रॉटल जाऊंगा, इस पे कहीं मैं पार ना हो जाऊं, मैं मेरी गाड़ी ना टूट जाए, डैमेज हो. सेम ड्रिफ्टिंग में भी होता है. बट इवेंचुअली व्हेन यू, एंड ये होता भी है, गाड़ियां टूटती भी हैं, बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट द हैंग ऑफ इट, तब आपको समझ आता है कि मैं ये करूंगा तो गाड़ी टूटेगी, ये करूंगा तो मैं सेफली इस ऑब्स्टिकल को कर सकता हूँ. करेक्ट. तो वो चीज है, वो तो है. Yeah. And now I think so we were actually talking about your The evolution. transition. हाँ. So aside from the Gypsy, then उसके बाद मेरे को था कि स्विफ्ट लेनी है. हाँ. तो स्विफ्ट ही माइंड पे होती थी, बट उस टाइम हमारा फैमिली का इतना बजट वगैरह नहीं था, सो वी सेटल्ड फॉर एन i10. इट वाज अ गुड डिफरेंस दोनों में. आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए का फर्क होता था, और 1.5-2 लाख बहुत अमाउंट होता है. तो उस टाइम पे नहीं अफोर्ड करते थे स्विफ्ट घर वाले, तो उन्होंने i10 लेके दी. बट आई मेड द मोस्ट आउट ऑफ दैट i10. आई मॉडिफाइड इट जितना मैं कर सकता था. मैंने उसमें मतलब लिटरली वो हसल वाला जील मैं आपको बताता हूँ. सो आई यूज्ड टू गो टू मायापुरी. वहाँ से मैं पुराने प्रोजेक्टर्स लेके आता था, ठीक है. मैं उनको क्लीन वगैरह करता था, LEDs वगैरह खरीद के, HIDs होती थी उस टाइम, HID खरीद के उन प्रोजेक्टर्स में लाके मैंने अपने घर पे अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स निकाली, ठीक है. आई टुक अ हेड ड्रायर आउट, मैंने उसकी वो सीलेंट पूरा हीट करा, एंड दिस वाज ऑल सेल्फ टॉट. खुद मैंने रिसर्च करके YouTube वगैरह और इन सब पे, टीम BHP पे सर्च करके और ऐसे करके हेयर ड्रायर से पूरी लाइट खोली, ठीक है. अंदर मैं ड्रेमल मांगा किसी से, ठीक है, किसी एक कोई मतलब क्या था वो वेल्डर वगैरह किसी वर्कशॉप, उससे ड्रेमल मांग के लाया घर पे. ड्रेमल से मैंने वो काटा, उसमें मैंने ड्रिल से पेच कसे, और मैंने उसमें प्रोजेक्टर फिट करा, और खुद वो प्रोजेक्टर मैंने फिट करा उसमें. और जब मैंने वो लाइट सील कर दी ओवर कॉन्फिडेंस में कि बिल्कुल इसकी बीम तो सीधी रोड पे आ रही होती है, वो जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई, लोगों की टैंकियों पे, घर की टैंकियों पे जा रही बीम, और हाई बीम तो और ऊपर जा रही. तो ऐसे सीखे, फिर समझ आया कि ये गलत कर दिया, फिर समझ आया कि दीवार के आगे खड़ी करके इसको फोकस करना है, फोकस सेट करा. सो ये चीजें खुद करना. ग्रिल उस टाइम, अब पैसे ऐसे तो इतने होते नहीं थे, तो क्या करा कि ग्रिल उतारी, बम्पर खुद खोला घर पे, कुछ नहीं पता. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वाज अ स्कूल किड यार, 10th क्लास में था मैं. सो 10th क्लास में ये ग्रिल घर पे खोली, काटी पूरी ग्रिल, चाकू से घर पे लगा हुआ हूँ, काट दिया पूरा, प्लास्टिक हो रहा है, चूरा चूरा गिरा हुआ है. एंड मच्छर जाली लेके आया, ठीक है, हमारे यहाँ पर मार्केट है, वहां से मच्छर जाली लेके आया. M-Seal से पूरी मच्छर जाली को सिल्वर कैन से पेंट करा, एंड वो मच्छर जाली M-Seal से लगा दी, तो ग्रिल बना ली, ठीक है. ऐसी चीज थी. अब वेल्डिंग तो आती नहीं थी, तो फिर उस टाइम CP में मैं गया, एग्जॉस्ट वगैरह लगाया उसमें, एंड धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पैसे लगते थे इन सब चीजों में. सो अब जो चीजें मैंने खुद तो कर ली सस्ते में, वो चीज मुझे समझ आ गई, तो मैंने मेरे दोस्तों के पास, अब लकीली मेरे और 4-5 दोस्तों के पास i10 थी. तो टर्न्स आउट सबके घर वाले स्विफ्ट नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे, सबके पास i10 थी, मेरे पास 1.2 थी. तो मैंने क्या करा, वो मेरे से पूछने लगे यार ये कैसे करा, ये करा. मैं कहा भाई मैं कर दूंगा तेरे लिए.
अब मैं आई यूज्ड टू यू नो हसल वाला पूरा दिमाग, तो मैं अपने दोस्तों के लिए कार्स वार्स के लाइट्स वगैरह लगा देता था मायापुरी से सब लाके, एंड 2-3 हज़ार रुपए उसमें बचा लेता था बता के कि भाई हाँ कि मैं भाई ये देख मैं लगा के तेरे को दूंगा, मैं 2,000-2,500 रुपए लूंगा करने के, तो हाँ ले लियो कर दे। तो उस टाइम 1,000-1,100 रुपए का प्रोजेक्टर एक मिलता था यार, पहले 2 मिलते थे मायापुरी से, तो वो लाके एंड एलईडी HID की कॉस्ट होती थी 3-4 हज़ार, वो सब लाके लाइट्स वाइट्स लगा देता था अपने दोस्तों के लिए। फिर एग्जॉस्ट लगाना था, पैसे चाहिए थे, तो इससे पैसे आ गए, अपना एग्जॉस्ट लगवा लिया। उसके बाद दोस्तों ने बोला हमें भी एग्जॉस्ट और फ्लेम थ्रोवर चाहिए, फिर अपने दोस्तों की गाड़ियां लेके जाता था उसी शॉप पर, वहां उसमें लगवाता था, उसमें भी अपने पैसे जो अपना कट होता था वो रखता था बता के कि भाई ये मैं तेरी गाड़ी में लगवा, बताता नहीं था उनको कहां से करा रहा हूँ, बट मैं करवा दूंगा और मेरे पैसे इतने लगेंगे करा के देने के। तो वो स्मॉल हसल्स वहां से शुरू हुआ। फिर उसको मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई थी तब, हाइपर ट्यून परफॉर्मेंस। मुझे लगा यार यही करना है लाइफ में, ये तो मतलब दिस इज इजी मनी, अपनी गाड़ी के लिए भी पैसे आ रहे हैं, दूसरों की गाड़ी भी मॉडिफाई कर रहा हूँ, पूरा दिन वर्कशॉप में काटने को मिल रहा है, इससे बेटर क्या होगा। तो हाइपर ट्यून आई थिंक 15-16 दैट टाइम, 10th में कितने साल का होता है बच्चा, उतने ही साल का था मैं। एंड हाइपर ट्यून परफॉर्मेंस मैंने पहली अपनी कंपनी शुरू करी उस टाइम, और मतलब कुछ रजिस्टर्ड मतलब वगैरह नहीं थी, बट स्टिकर्स प्रिंट कर लिए, जो भी गाड़ी को मैं करवाता था उस हाइपर ट्यून परफॉर्मेंस का स्टिकर लगा देता था। तो उस टाइम पे तो ये चीजें करी, यहाँ से फिर पैसे वैसे आए, समझ आया कि यार ये शौक है हमारे। माई i10 यूज्ड टू थ्रो फ्लेम्स बैक इन 10 और 11, 2010-11 में हम गाड़ी से इतने लंबे फ्लेम्स निकल रहे हैं, पूरी वो टू फास्ट टू फ्यूरियस वाली वाइब्स, टोक्यो ड्रिफ्ट वाली और सब। तो यहाँ से शुरू हुए, फिर धीरे धीरे फिर अलग अलग काम करे। फिर एक बार थोड़ा सा फैमिली का डाउन टाइम आ गया था, तो उस टाइम पर आई हैड टू सेल माय कार एंड एवरीथिंग, तो कुछ भी नहीं था तब दोस्तों की गाड़ियों में घूमा बहुत। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हार्ड वर्क करा भाई, फिर बिल्डअप करा सारा। So you've been through that phase also, जहाँ पे कि it was a complete down हाँ या देखो, my father is a businessman and every business has its ups and downs, तो ऐसा ही होता है बिजनेस में, बस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, चलता रहता है। इनफैक्ट मेरे अब जो बिजनेसेस है उसमें भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो एक मतलब डाउन थोड़ा ज्यादा आ गया था बस, क्रेजीली वो था, तो आई हैड टू सेल माय कार एंड माय फादर आल्सो सोल्ड हिज कार एंड एवरीथिंग। तो कर आके फिर हम पर धीरे धीरे फिर शौक करा, फिर बिल्डअप करा। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट कार दैट आई बॉट माई सेल्फ वाज अ स्विफ्ट, एंड धीरे धीरे फिर स्विफ्ट एक ड्रीम थी यार कि ये लेनी है यार, ये Swift you bought yourself, हाँ, and हाँ. this was out of the money that you made in your performance company. नो that नो you were नो running. नो नहीं, ये तो मैं बहुत साल बाद की बात बता रहा हूँ। दिस वाज जो मॉडिफिकेशन वगैरह था, इट वाज बैक इन 2008, 9, 10 When you were about in 10th or something. हाँ, तो एंड उसके बाद ये सारा तो मैं 2015 की बात बता रहा हूँ। Okay. माय कार इज 2015, आई स्टिल हैव दैट कार, इट्स स्टिल विद मी। Understood. एंड ये तब की बात बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ से शुरू हुआ सारा। फिर वो गाड़ी ली, फिर उसमें भी आई पुट 17 इंच रिम्स और पूरी ऐसे जेट ब्लैक करा के गाड़ी बिल्कुल बहुत ऐसे घूमे। उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह का भी शौक था उस टाइम पे, सो इट हैड अ किक-एस ऑडियो सेटअप, और ऐसे करा। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से ट्रांजिशन हुई। फिर एक जन्नत का बड़ा ट्रेंड आ गया था, जन्नत मूवी का, तो सबको बहुत अकॉर्ड पसंद थी, अकॉर्ड हो रहा था। सो आई बॉट अ यूज्ड अकॉर्ड फॉर माई सेल्फ। तो बाद में पता चला है तो गैस गजलर है इसमें, मतलब अकॉर्ड से जितना तो पेट्रोल लग जाएगा। तो फिर उसमें फिर CNG लगवाई मैंने, सोचो मैंने मानेंगे नहीं, हाँ अकॉर्ड में लगाई, एंड इट वाज अ 2.4 नॉट द V6 वन, बट 2.4 में लगाई उस टाइम, क्योंकि भाई पैसे होते नहीं थे, बंदा गाड़ी तो खरीदी जोड़ जाड़ के, And it was a guzzler, I remember. हाँ, और बट तेल कहाँ से डलाएं उसमें, तो ये चीज स्टार्ट हुई। तो ऐसे से धीरे धीरे इवेंचुअली फिर So I think after you got done with your schooling and everything, then I think I'm assuming you joined your dad only in the business. No. अच्छा, you didn't. Okay. I still haven't worked अच्छा, with you've my not dad. done. No. उनका अलग सेपरेट बिजनेस है, मेरा अलग सेपरेट बिजनेस है। Okay. एंड तो वो भी फनी स्टोरी है कि बस यही था कि खुद कुछ करना है। एक्चुअली माय डैड इज अ सेल्फ मेड मैन, सो माय दादाजी ही वाज इन द आर्मी, सो आर्मी ब्रैट है, थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह तो था। तो एंड हाउस होल्ड में कोई ज़्यादा इतने पैसे होते नहीं कि बिल्कुल कोई लैविश लाइफस्टाइल हो या ऐसा कुछ हो, और कोई बहुत ज़्यादा हाई रैंक पर भी नहीं थे, मतलब अच्छे डिसेंट रैंक पे थे। एंड फिर धीरे धीरे फिर फादर को मैंने लाइफ लॉन्ग देखा भाई, जब से पैदा हुआ था देखा कि खुद ही करा उन्होंने सब। सो ही वॉज माई इंस्पिरेशन, ही स्टिल इज़ माई इंस्पिरेशन कि मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हाउस होल्ड से निकल के फिर आज भी मतलब गोइंग टूवर्ड्स अपर मिडिल क्लास और ये सारा चीज। तो बस यही था कि उनकी तरह बनना है, उन्होंने खुद करा है तो खुद ही करना है। सो ये सारी चीजें थी माइंड में बिल्कुल ही। एंड बट एटलीस्ट ये चीज भी माइंड में थी, ये चीज भी
थी कि भाई फादर है, मेरा बैकअप है मेरे पास, सो आई कुड टेक मोर रिस्क। ये चीज थी कि मेरे को पता था कि उड़ना है, पर गिरने से नहीं डरा मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे फादर मेरे साथ हैं। तो ये चीज थी, एंड ही इज ऑलवेज बिन देयर विद मी, एंड ही इज लाइक अ फ्रेंड बिल्कुल। तो उन्होंने भी आइडियाज वगैरह सब हेल्प दी करी मेरे को कि कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी कभी कभार करी कि कई बार मैं लाइफ में फंस जाता हूँ कि यार पापा यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या करूँ, कैसे करना चाहिए, तो वो गाइड करने। इनफैक्ट इज एन एविड व्यूअर ऑफ द चैनल ऑल्सो, ऑफ माई चैनल। तो वो भी बताते हैं यार तू अब ऐसे कर, तू अब ऐसे वीडियोस डाल, बहुत गाड़ी हो गया यार, अब तू कहीं घूमने जाओ, ट्रिप के डाल। तो ऐसे तो गाइडेंस तो देखो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी जब तक वो है। तो यही चीज है, तो इसीलिए जील थी भाई, खुद ही करना है। सो इसलिए व्हेन आई वाज 19 आई गेस, देन आई मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग, एंड फिर वहां से थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ मिल के कुछ काम, फिर साथ में पढ़ाई भी। फिर उस टाइम पे बॉडी बहुत अच्छी थी, सो माय फादर वाज ट्वाइस मिस्टर इंडिया इन बॉडी बिल्डिंग। सो या तो ही यूज्ड टू कम्पीट। तो और दादाजी, I thought you were the only one. नो, ये तो जनरेशन है। मेरे दादाजी भी पहलवान थे, तो फादर साहब भी थे, और फिर ये पैशन तो अंदर था ही। तो बॉडी बिल्डिंग एंड कार्स, सो बॉडी बिल्डिंग करी मैंने, बहुत अच्छी फिजिक बना। व्हेन आई वाज 19, लाइक आई हैड 17.5 इंच आर्म्स, एंड आई हैड अ वेस्ट ऑफ 28, एंड उसके बाद पूरे 6 पैक एब्स और 9-10% बॉडी फैट और ऐसे ह्यूज बैक। I think just to give everybody a perspective, right now my waist is 33.5. So just imagine Ashwin's waist was 28 back then. You could feel मेरे स्टमक पे ऐसा फैट था जैसा यहाँ होता है ना, ऐसा था। And Aradhya has seen me like that. उस टाइम पर भी आई थिंक थोड़ा मैं उस टाइम ऑफ सीजन में था, तो बल्क अप में था। उस टाइम 18 इंच आर्म्स पहुंच गए थे, 18.5 पहुंच गए थे, तो थोड़ा वेट गेन हुआ था उस टाइम पे। बट रिब में पूरा ऐसा था। तो नॉलेज बहुत अच्छी थी, सेल्फ टॉट था, कोई गुरु नहीं, बॉडी बिल्डिंग कुछ नहीं, जस्ट इंटरनेट, खुद ही सीखा, खुद ही इम्प्लीमेंट करा, रिसर्च करी, लोगों से बातें करी, जो इस फील्ड के दिग्गज थे उनसे बातें करी, गोरों को ईमेल्स करता था, एंड आई हैव शॉर्ट ईमेल्स टू रिच पियानो आल्सो, इन सबको भी मैं मेल्स करता था कि हेल्प मी आउट इन एवरीथिंग, आई एम फ्रॉम इंडिया, ऐसे करके। और कुछ रिप्लाई करते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर सीखने को मिला ऐसे। तो फिर बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज अच्छी थी, सो आई वेंट अहेड एंड जॉइंड अ जिम एज अ ट्रेनर। तो वहां से फिर शुरू हुआ ये सारी चीज। तो वहां से भी लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देते हो, फिर समझ आया कि पर्सनल ट्रेनिंग का भी ट्रेंड है, उसमें यू कैन अर्न मोर। फिर वो सब करके फिर मेरे पास क्लाइंट्स आते थे दूर से। अगर मैं इधर वेस्ट दिल्ली में बेस्ड हूँ तो करोल बाग से, साउथ दिल्ली से इधर आते थे। फिर मुझे समझ आया कि ज्यादा पेइंग क्लाइंट साउथ दिल्ली हैं। फिर मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जिम में जाके वर्कआउट करना शुरू कर दिया, एंड वहां पर सब करना शुरू कर दिया। तो this is the time where you used to come to NFC. NFC I remember. So yeah, उस टाइम मैं compete भी करता था बॉडी बिल्डिंग में, एंड फिर धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग से ट्रांसिशन हुआ इसमें पावर लिफ्टिंग में। बॉडी बिल्डिंग में मेरे को लगा यार, अगर आपको स्टेज पे सब भी इतने इनहैंस्ड है, मतलब इनहैंस्ड मैं वो टर्म नहीं बोलना चाहूंगा, बट यू नो क्या चीज है, लाइक एनाबॉलिक्स एंड एवरीथिंग, वो सब बहुत यूज है, एंड लोगों को अब्यूज करना पड़ता है। अब एक बंदा जिसमें समझ है कि भाई ये चीजें मेरे लिए गलत है, बट लिमिट में सही है, बट आप लिमिट में कर रहे हो, बट बाकी सारी दुनिया तो ऑफ लिमिट करके चल रही है वहां पर। तो आप वो वाली फिजिक का लेवल आप लेके ही नहीं आ पा सकते नेचुरली। And I think it also depends on purpose. When you're doing professional bodybuilding, that's a very different ballgame. When you know that you're building a good body and you have to do your daily life, you have to do your work, you have to handle your family. Exactly. Then you need to. But उस time there was no work, ना, there was college and gym का ही काम था। Correct. वहीं खुद की बॉडी बिल्डिंग हो जाती थी, तो I was like happy कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर मुझे समझ आया पैसा भी नहीं था यार बॉडी बिल्डिंग में। आज भी आई डोंट थिंक इतना ज्यादा कोई पैसा है। लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं यार स्टेज पे चढ़ने के लिए, एंड प्राइज मनी में आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा मिलता है। In fact, even as you're talking about bodybuilding, for that matter, even motorsports in India, I think exactly it's same, not exactly at all same. rewarding right now. कुछ भी नहीं है। बाहर के आप एथलीट्स को देखो, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है। Correct. एंड इधर स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी मिलते हैं। अब तो इंडिया में ये सब ट्रेंड भी शुरू हो गया, गवर्नमेंट इज वेरी हेल्पफुल, एंड फिर स्पॉन्सर्स वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा लग जाता है यार एक बंदे का स्टेज पे चढ़ने के लिए। फिर मुझे समझ आ गया यार इसमें पैसा नहीं है, पर और मुझे समझ आ गया कि बॉडी ना अच्छी दिखनी चाहिए, स्टेज वाली अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, बट वैसे अच्छी दिखनी चाहिए कि आप एक ट्रेनर भी प्रेजेंटेबल लगे। Correct. तो मैंने स्टेज लेवल की वो डाइट एंड वो सब छोड़ के मैंने नॉर्मल अपनी डाइट रखनी, मतलब एब्स उस टाइम भी थे, बट वो स्टेज वाली क्लैरिटी नहीं थी कि बिल्कुल 3D वो बॉडी लगती है ना, वो वाली नहीं थी कि फोटोशॉप बॉडी लग रही है।
वो नहीं थी, बट नॉर्मल बॉडी एब्स वैब्स के साथ पूरी रखी, एंड उसी में मैं ट्रेन कर देता था लोगों को, एंड सब हैप्पी सिचुएशन, उसमें ज्यादा पैसे कमा रहा था। स्टेज पे तो कुछ मिलता ही नहीं था। Correct. फिर वहां से समझ आया कि फिर पर शौक था कंपीट करने का, फिर पावर लिफ्टिंग में आया। मेरे में स्ट्रेंथ, मुझे लोगों ने बोला कि बहुत ज्यादा है, मतलब खुद को भी फील होता ही है, बट जब लोग उसको बोलने लगते हैं ना आपको कि यार भाई तेरे में जान बहुत है, इस वेट में तू ये वेट मार रहा है, तो आई थिंक यू शुड कम्पीट। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग में रिसर्च करा, फिर धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करा, फिर आई गॉट 2 मेडल्स फॉर इंडिया ऑल्सो इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये भी चीज है। मेरे पास घर में एक पूरा वॉल है, जो मेरे फादर साहब का घर है, उसमें डैड के मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैं, मेरे मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैं, दोनों के साथ ऐसे दो उसमें वो हैं अलमीराज, एक डिस्प्लेज है बेसिकली। तो उसमें डैड के मेडल्स एंड ट्रॉफीज लगे हुए हैं, मेरे लगे हुए हैं साथ में। How many medals did you win in bodybuilding and strength training, powerlifting? टोटल मिला के आई थिंक आई कम्पीटेड लाइक 6-7 टाइम्स उसमें। पावर लिफ्टिंग के तो ज्यादा थे, बट बॉडी बिल्डिंग के 6-7 टाइम्स था, क्योंकि मैं स्टेट लेवल से आगे कभी गया ही नहीं। तो इसमें मतलब मेरे को समझ आ गया था यार, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है राधे, बॉडी बिल्डिंग में बहुत लगता है, एंड पावर लिफ्टिंग में रिलेटिवली कम लगता है। पावर लिफ्टिंग में आपका पैसा फूड वगैरह पे ज्यादा लगता है, बिकॉज़ यू हैव टू ईट अ लॉट, और उसकी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, फिर पावर लिफ्टिंग में आया, फिर समझ आया कि हाँ जान है, कर सकता कम्पीट। एंड जब मैं पहले कंपटीशन के लिए गया, तो जो वेट होता था, कपड़े वपड़े सब उतार के वेट करते हैं, सो आई वाज द ओनली पावर लिफ्टर ओवर देयर हु हैड एब्स, सारे तगड़े तगड़े एकदम। ये मैं कहा भाई क्या करूंगा मैं, और वो भी मेरे को देख रहे कि ये क्या करेगा, बट ठीक है। अच्छा, पहले कंपटीशन में आई केम सेकंड, सो आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि हाँ भाई जान है। खुद को भी लगा कि नहीं यार सेकंड आया हूँ, एंड बहुत कम फर्क था। आई थिंक मैंने उस टाइम पे 160 की बेंच मारी थी, किसी ने 165 की मारी थी, तो 2.5 किलो की प्लेट उसने मेरे से फालतू लगाई, एंड वो भी ऐसा हो गया कि प्लेसमेंट, क्योंकि उसका मेरे बाद नंबर था, तो उसको समझ आ गया इसने 160 मारी, तो मुझे किसी तरह से 165 मारनी है, तो उसने कर दिया। तो सेकंड आई, फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस करता गया, एंड स्ट्रेंथ थी नेचुरली, तो ये चीजें करता गया। तो यहाँ से फिर आया, फिर थोड़े फंड्स और इकट्ठे होते गए, फिर वापस वही गाड़ियों में खर्चा होते गया। फिर लास्ट व्हेन आई क्विट बॉडी बिल्डिंग एंड पूरा जिम का जब मैंने हिसाब किताब बिल्कुल ही खत्म कर दिया, दैट वाज बैक इन 2017। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन इन हैदराबाद, एंड बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन था। मैंने सोचा दोबारा बॉडी बिल्डिंग में ट्रांजिशन करता हूँ, एंड मिस्टर इंडिया खेलूंगा मैं भी, क्योंकि डैड ने टाइटल लिया था, मेरे को भी था यार मैंने नेशनल नहीं खेला, बिल्कुल इंडिया लेवल पे तो खेलूं। तो मैं फिर वापस ट्रांजिशन कर रहा था। आई वाज इन हैदराबाद 6 मंथ से, मैं वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, अकेले एक रूम में रह रहा था, एंड लिटरली दैट रूम वाज लाइक कि नीचे जिम है, जो जिम का ऊपर स्टोर रूम है ना, उस स्टोर रूम में मैं रहता था, लिटरली स्टोर रूम। एक मंजी थी, उस पे जो लोहे की खाट होती है, उस पे सोता था, एंड वहां पर ही अपना छोटा सा इलेक्ट्रिक वो लाया हुआ था, उसी में अपना डाइट वाइट बनाता था, एंड जो जिम का वॉशरूम था वो यूज करता था, एंड इट इज फिल्थी, मतलब यू माइट नॉट नो बट इट इज। तो वो सारी चीजें कि वहां पर कि बस ट्रेन करना है। उस टाइम पे माइंड में बस ये था कि सब चीज अलग है भाई, जो पैसे बचा रहा के सब कुछ है, ये चीज बस अब बॉडी पे ही लगानी है, एक टाइटल लेके आना है। तो ये चीजें चलती रही। फिर वहां पर अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्वाट मार रहा था, तो उसमें L5S1 मेरी स्लिप हो गई, तो स्लिप डिस्क हो गई। तो वहां पर मतलब दोज वर टेरेबल डेज कि मतलब मेरे को ऐसा लगा यार कि मैंने इतना इश्क करा है लोहे से, इसने मुझे धोखा कैसे दे दिया, कि मेरे को कैसे चोट लग गई यार इस चीज से। आई वाज डिसहार्टेंड, एंड सोचो एक बॉडी बिल्डिंग की प्रेप में 6 महीने इनटू प्रेप, तो इतना खर्चा, इतना फैमिली से अलग, शहर से अलग, दोस्तों से अलग, एक अनजान शहर में बिल्कुल, और बिल्कुल वहां पर ऐसे कि लगा कि यार ये तो खत्म हो गया। एंड आई कुडंट इवन वॉक। तो 2 नर्व्स होती हैं हमारे, सेंसरी और मोटरी, यू मस्ट बी नोइंग। तो जो डिस्क मेरी निकली ना L5S1 में 40% बाहर आ गई, एंड इट प्रेस्ड माय सेंसरी नर्व इन द राइट लेग, so I couldn't even feel anything. Sciatica. तो sciatica pain होता रहता था, and I couldn't even walk, and the first 1.5 months were terrible. I couldn't even move my right foot forward. तो रेंग के घर में ही घूम रहा था, I was alone. तो उस कमरे में ही रेंग के घूमना, इधर उधर वॉशरूम जाना, सहारा लेके ऐसे करके। फिर फ्लाइंग अलाउड नहीं थी, वापस आ नहीं सकता था दिल्ली, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, ट्रेन से नहीं आ सकता, फ्लाइट से नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता ज्यादा देर, तो अटक गया था वहां पर। तो 1-1.5 महीना कैसे तैसे करके काटा। थोड़ा बहुत नेबर्स अच्छे थे, तो थोड़ा उन्होंने ध्यान थोड़ा कर दिया। थोड़े जिम के लोग बहुत अच्छे थे, हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मदद करी, लोगों ने बहुत ध्यान रखा वहां पर, एंड वेरी स्वीट पीपल सीरियसली। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा। आई गॉट बैक
थोड़ा सा चलने फिरने का हुआ। फिर मैं दिल्ली आया, फिर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इधर सफदरजंग में मैंने सारा कराया। उन्होंने मेरे को मतलब बोल दिया था कि तू 1 साल में ऐसा कर दूंगा कि तू भागने दौड़ने लगेगा, एंड 6-7 महीने में उन्होंने ऐसा कर दिया मुझे कि मैं लिटरली भागने दौड़ने लग गया। वहाँ वैक्यूमेट मशीन, उस टाइम पे इंडिया में एक ही वैक्यूमेट मशीन होती थी, तो वहाँ पर थी। तो रेडियोथेरेपी, लेजर थेरेपी, ये वैक्यूमेट, ये सारी चीजें, फिर फिजियोथेरेपी, ये सब कर आके आई गॉट बैक, एंड बिल्कुल अभी नॉर्मल है। बट आई स्टिल रिफ्रेन कि मैं कोई ज्यादा वर्कआउट वगैरह, कुछ हैवी लिफ्टिंग वगैरह अभी ना करूँ। तो ये चीज हुई बस धीरे धीरे। एंड देन after you made some money out of training people, after that then what was your source of income, as in what kind of work did you did? तू हंसेगा भाई। अरे उसके बाद यार हर किसी का होता है कि हंसने की बात ही नहीं है, dude. I mean honestly I can tell you the way you have been hustling, it's something that everybody should learn from. It's not a joke. हाँ, तो ये चीज मत सीखना जो मैंने अगली करी। आई जॉइंड सम MLM, वो पिरामिड स्कीम होती है ना, 2 बंदे जोड़ो, ये वो ऐसे वो करा, बट उसमें तो नुकसान टाइप ही हुआ बहुत। वो तो मोस्टली स्कैम्स ही होते हैं। It happens. फिर ऐसे हुआ, फिर 1-2 दोस्तों के साथ और साइड हसल्स करे, कुछ चीजें शुरू करी। फिर थोड़ा रियल एस्टेट का भी समझ आने लगा। फिर 1-2 फ्रेंड्स थे वो इन सब चीजों में थे, तो उन्होंने बड़ा हेल्प करा एंड गाइड करा कि नहीं ये चीज ऐसे ऐसे कर। फिर उसके बाद फिर गाड़ियों की तरफ मैं दोबारा वापस आया। किसी ने मेरे को बोला कि भाई तू कार्स का कुछ वो कर सकता है, तो कार्स का भी करा। मैं धीरे धीरे करते हुए फिर मेरे को समझ आया। फिर एक नई चीज उस टाइम पे आई, बहुत एक वो चला क्रिप्टो करेंसी का। तो फिर आई स्टार्टेड क्रिप्टो, देन आई अंडरस्टूड इट। जब इंडिया में नहीं था ट्रेंड उसका, तब बाहर ज्यादा था, इंडिया में इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को। तो मेरे को वो समझ आया, तो मैंने वो सीखा। मेरे को समझ आया कि यार नहीं, इसमें क्रिप्टो के अलावा भी ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, इसके कई एप्लीकेशन हो सकते हैं, कई और चीजें हो सकती हैं। मैं बहुत इन डेप्थ घुस गया उसमें, एंड उसी को पकड़ के फिर मैंने थोड़ा बहुत उस टाइम ट्रेडिंग वगैरह करी, एंड ये सारी चीजें करी, एंड मेड डिसेंट मनी। उसके बाद फिर when you have money you can invest in other places। फिर और थोड़े बहुत बिजनेसेस करे, फिर अपना फार्मा वगैरह का भी करा, एंड उसके बाद फिर आज कैफे वगैरह भी है। तो ये सब सारी चीजें हैं साथ में। तो धीरे धीरे मतलब एक बार आप थोड़े से पैसे कमा ले तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं थोड़े रिस्क ले सकता हूँ। तो वो रिस्क लेते आज भी चलता रहता है। क्रिप्टो में रिस्क वगैरह आज भी चलते रहते हैं। इनफैक्ट अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं अभी ही इतने लॉस में शो इट I can't show it on the camera, but you can buy a decent car in this, जितने का लॉस में हूँ भी मैं। तो ऐसे चलता रहता है भाई, आप कमाते हो, आप गवाते हो। I think investments का पर्पस ही है that it's okay। यार मेरे के साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ना काम करने में मजा आता है। कई लोगों को होता है कि इनको हसलर, I mean, हाँ, मैं खाली बैठ ही नहीं सकता। मेरे को चाहिए, खाली भी बैठ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बैठ के बस पैसे आ रहे हैं, वो मुझे उस पैसे का मजा ही नहीं आएगा। जो मेहनत की कमाई का खर्च करा हुआ है ना, उसकी अलग ही फील है। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेहनत की कमाई की गाड़ी की जब आप सेल्फ मारते हो ना सुबह उठ के काम पे जाने के लिए, उसकी अलग ही फील है। बहुत मजा आता है उसमें। मेरे को शौक है काम करने का। तो मेरी मम्मी भी मजाक उड़ाती है इस बात पे मेरा कि तू तो जूते घिसा के कमाने वाली आदत डाली हुई, तूने जब तक जूते नहीं घिसाएगा तब तक नहीं कमाएगा। तो ये चीज है, तो शौक है काम करने का।